Good morning, students. And today, all of you know, that we are doing the group number 15 elements of P block, in which we have learned already about the physical and chemical properties of this group 15, that is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, और साथ में moscovium, which is a radioactive element, which is half life. And now today we are going to tell you about the anomalous properties of nitrogen, then preparation of dinitrogen and ammonia, and chemical properties of dinitrogen and अमोनिया. तो आज हम ये स्टडी करेंगे और इस ग्रुप के अंदर अभी हमें एक नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज भी करनी है, विच वी विल शेयर विद यू इन द नेक्स्ट वन लेक्चर. ओके, सो we come up to the anomalous behavior of nitrogen. अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा, तो as all of us we know that nitrogen is a gas in all elements of this group. And if we are talking about your particularly नाइट्रोजन अगर बात करें तो N2 जो होती है वो गैसियस होती है, जबकि सारे के सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप के वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक P4, S8 एंड AB4, AS आर्सेनिक, 4 एंटीमनी, स्टिबाइन जिसे कहा जाता है SB4. तो इस तरीके से, ठीक है. नाइट्रोजन जो होता है इसमें डायटोमिक होता है, जबकि बाकी मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेट्राएटॉमिक होते हैं, ठीक है. और अगर नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ता है तो हाइड्राइड्स बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, whereas rest of the members also of this group they combine with hydrogen and forms hydrides. But 3 plus 3 oxidation state and plus 5 oxidation state both is existing with the rest of the element, but nitrogen is showing only the 3 oxidation state when it combines with hydrogen and forms NH3. ठीक है. अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की बॉन्डिंग की, सो इट इज शोइंग पी पाई मल्टीपल बॉन्ड इन इट, है ना. डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें, जिसमें से 2 बॉन्ड्स जो होते हैं आपके, जो कि पाई बॉन्ड्स होते हैं, वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड दिखाता है. And nitrogen is not showing the D pi multiple bond, which is shown by rest of the members of this group, but P pi multiple bonding is not shown by the not shown by the other members of this group. Oxidation state हम already discuss कर चुके हैं कि it is showing -3 to +5 oxidation state. +5 oxidation state is absent in case of nitrogen again, and it is shown by rest of the members. The reason behind, because the maximum covalency of nitrogen is 4, and the second and very important reason of not showing +5 oxidation state in nitrogen, that is absence of d orbital. तो इसमें d orbital absent होती है, so that's why it is not able to show the +5 oxidation state. अगर हम बात करते हैं आपकी coordination compounds के लिए, so it is not having d orbital, and that's why it do not form coordination compounds, whereas rest of the members they are showing the what coordination compounds also. Okay, so this is all about your so beta, if we are talking about the dinitrogen properties, so how first of all we will study how dinitrogen is prepared, ठीक है. So commercially preparation of dinitrogen जो होती है, that it is prepared by the fractional distillation of air, because as all of us we know that nitrogen is the major component present in the air, so it is produced commercially by liquefaction and fractional distillation of air, and in which liquid dinitrogen जो होती है, that whose boiling point is near about 77.2 Kelvin, ठीक है, that distills out first
and leaving behind liquid oxygen whose boiling point is near about the 90 Kelvin. Okay, अगर हम बात करते हैं लेबोरेटरी मैन्युफैक्चरिंग की, इसकी laboratory preparation की, so obviously dinitrogen is prepared by treating an aqueous solution of ammonium chloride with sodium nitrate. ठीक है, sodium nitrite, this is NaNO2. If it is NaNO3, that is sodium nitrate. If it is NaNO2, then it is sodium nitrite. ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड को जब हम सोडियम नाइट्राइट के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, इस सोल्यूशन को ट्रीट करते हैं, तो हमें क्या मिलती है, दैट वी विल गेट अ नाइट्रोजन गैस एयर. तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस विद द रिलीज ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड present in the aqueous solution and water we will get. ठीक है, in this one reaction very small amount हम कह सकते हैं, that is of nitric oxide and HNO3, nitric acid. क्या क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड भी इस रिएक्शन के अंदर बेटा बनता है, और जो कि हम रिमूव्ड कर सकते हैं बाय पासिंग द गैस थ्रू aqueous solution of सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें कि पोटाशियम डाइक्रोमेट हो. दोबारा समझाऊं, अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइट के साथ किया तो आपका N2 मिला, नाइट्रोजन गैस मिली, और साथ में वाटर और NaCl. NaCl मींस एक्वस फॉर्म में मिला, और साथ में बहुत कम अमाउंट में नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड मिला, जो कि हम रिमूव कर सकते हैं बाय पासिंग द प्रोडक्ट, ऑल द प्रोडक्ट through the aqueous sulfuric acid which is already containing potassium dichromate. ठीक है, and nitrogen gas is also formed by या obtained by the thermal decomposition of आपका थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड. बेटा इसकी जगह हम BaN3 होल ट्वाइस भी ले सकते हैं, बेरियम सोडियम अजाइड भी लेते हैं, दैट इज NaN3, और हम बेरियम अजाइड भी ले सकते हैं, BaN3 का ट्वाइस. ठीक है, ये इससे भी रिएक्शन हो सकती है. तो इन दोनों का, सोडियम अजाइड का या बेरियम अजाइड का, अगर थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है, सो वेरी प्योर नाइट्रोजन विद द रिलीज ऑफ सोडियम और बेरियम इज ऑब्टेन्ड. ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा बच्चे, दैट इज टू बी जस्ट 1 मिनट, ये मैं इरेज कर देती हूँ सो दैट ये बेटा आप नोट कर लेना कि ये रिएक्शन बेरियम अजाइड के साथ भी हो जाती है. और अगर हम बात करते हैं आपके या जस्ट 1 मिनट. Now beta we are supposed to do the chemical properties of nitrogen. ठीक है, तो as if we are talking before started about the chemical properties of N2 या nitrogen, we should know about that there are the two isotopes of nitrogen, that is 14 nitrogen having atomic mass of 14 and nitrogen is having atomic mass of 15. ठीक है, तो इन दोनों में करते हैं. तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाती है, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज बता देती हूँ. तो डाइनाइट्रोजन जो होता है आपका कलरलेस है गैस आपकी. ठीक है, and it is a colorless, it is a odorless, it is a tasteless and non toxic gas होती है ये हमारी. नाइट्रोजन एटम के दो स्टेबल आइसोटोप्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया 14 and 15, and it has very low solubility in water, काफी कम डिसॉल्व होता है, and it is also having very low freezing and boiling point. अब अगर हम बात करें डाइनाइट्रोजन के केमिकल नेचर की, सो ऑब्वियसली डाइनाइट्रोजन केमिकल नेचर, इट इज इनर्ट इन एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इट्स हाई बॉन्ड एंथैल्पी, दैट इज एन ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी हाई होती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज इनर्ट इन नेचर. एंड यही रीजन है कि ये इनर्ट गैस की तरह भी बिहेव करता है. एंड रिएक्टिविटी इट्स इंक्रीजेस रैपिडली विद राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, एट हायर टेम्परेचर इट डायरेक्टली combines with some metals to form predominantly
डोमिनेंटली आयनिक नाइट्राइड्स एंड विद नॉन मेटल्स अगर हम बोलें तो ये कोवलेंट नाइट्राइड्स बनाता है। ठीक है, टिपिकल अगर कुछ रिएक्शंस को देखते हैं यहाँ पे, तो एज यू कैन सी दैट इट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम नाइट्राइड, हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्राइड बनाता है, अमोनिया की फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली अगर मेटल्स की हम जैसे बात कर रहे थे, तो इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद लिथियम Li+N2 एंड गिव्स लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, और हम अगर बात कर रहे हैं हाइड्राइड्स की, जो मैंने आपको बोला, तो ये अमोनिया फॉर्मेशन है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज अ हेबर्स प्रोसेस ऑल्सो, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल। और अगर हम बात करते हैं ऑक्साइड्स की, तो डाइनाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन ओनली एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, एज यू कैन सी हियर 2000 केल्विन पे ये आपका कंबाइन करता है, और क्या बनाता है आपका, इट इज फॉर्मिंग योर नाइट्रिक ऑक्साइड इन दिस वन केस। ठीक है, एंड सिमिलरली कैल्शियम कार्बाइड के साथ भी नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है, तो इट इज फॉर्मिंग calcium cyanide with your what, that is also forming your calcium cyanamide, और कैल्शियम साइनामाइड के अंदर वो आपका क्या बनाता है, कैल्शियम साइनामाइड के साथ आपका कार्बन की फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर नाइट्रोजन। और अगर हम बात करते हैं आप प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया की, ठीक है, नेक्स्ट, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया स्टार्टेड, मैं डाइनाइट्रोजन के यूजेस अगर आपके साथ बोलूं, तो डाइनाइट्रोजन यूजेस इज, it is used in the manufacture of ammonia, as well as it is also used in the industrial chemicals to form the chemicals in the industries, like calcium cyanamide, as we have seen here, or it also used wherever the inert nature of nitrogen gas is to be used, जैसे कि स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के अंदर। सो अमोनिया जो होता है, इट इज प्रेजेंट इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर। फर्स्ट ऑफ ऑल अकरेंस की अगर मैं बात करती हूँ, तो बहुत ही कम क्वांटिटीज में ये एयर में प्रेजेंट है, सॉयल में प्रेजेंट है, और इट इज फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि यूरिया से इसको बनाया जाता है। ठीक है, दैट इट इज फॉर्म्ड बाय दैट। और अगर मैं लेबोरेटरी मेथड की बात करूं, तो यस, लेबोरेटरी मेथड में इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर से हम क्या कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसा कि NH4 Cl plus CaOH whole twice gives क्या देगा आपको, कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2 अमोनिया प्लस 2 वाटर। ठीक है, जस्ट 1 मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट। ओके बेटा, सो हमने कहा कि लेबोरेटरी मेथड में अमोनिया इससे प्रिपेयर्ड होता है, जबकि मैं बोल रही हूँ आपको कि ये नाइट्रोजिनस मैटर जैसे आपका यूरिया से भी प्रिपेयर्ड हो सकता है। तो इन दैट वन रिएक्शन it urea, when we combine the urea with water like NH2CO NH2 plus water अगर हम करते हैं, तो it will give us a ammonium carbonate NH4 whole twice CO3, और which after decomposition या reversible reaction होती है, it converted itself into the अमोनियम कार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट कर देगा NH3 प्लस वाटर प्लस CO2 में। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें जो है अमोनिया जो होता है इस केस के अंदर, इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिलीवरी ट्यूब, एज इट इज लाइटर देन एयर एंड ड्राइड ओवर क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इस केस के अंदर ये इस तरीके से आपका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं अमोनिया की प्रिपरेशन की किस पे, हायर लेवल और ह्यूज लेवल पे, लार्ज स्केल पे करते हैं। सो अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ लार्ज स्केल
with the help of a Haber's process. और इसमें बेटा सबसे पहले आपको देखना होता है कि in accordance with the Lee-Chatelier principle. तो Haber's process में सबसे पहले reaction is very easy, as you can see here, N2 plus 3H2 according to the Lee-Chatelier principle. High pressure and favors the formation of ammonia. High pressure कितना 200 to 900 atmospheric pressure and near about optimum conditions जो होती हैं for production of ammonia, that is a pressure of अगर हम पास्कल में बात कर रहे हैं तो it should be near about 200 into 10 raised to the power 5 पास्कल आपका, ठीक है, इतना पास्कल होना चाहिए, 10 raised to the power 5 पास्कल, जो कि हमारा 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट है। और इसमें यूज ऑफ कैटलिस्ट होना चाहिए जो कि आयरन और मोलिब्डेनम है, और टेम्परेचर नियर अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस टू 500 सेल्सियस होना चाहिए। तो फ्लो चार्ट ये दिया हुआ है बच्चे, इसमें सिंपली 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है व्हेन combined together and in a compressor, ये कंप्रेसर है जिसमें कि आपका ये दोनों क्या किए जाते हैं मिक्स की जाती हैं, कंप्रेसर के अंदर दोनों मिक्स होती हैं एंड देन इट मूव्स टू द कैटलिस्ट चैम्बर। इस कैटलिस्ट चैम्बर में आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज किया जाता है, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं ये रिएक्शन, सो रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो होगा दैट इज टू बी अचीव्ड। और आयरन इसमें एज ए कैटलिस्ट है, जबकि इसमें मोलिब्डेनम का काम जो होता है वो एज ए प्रमोटर होता है बेटा। किसकी तरह करते हैं? प्रमोटर की तरह। तो यहाँ बनती है अमोनिया को, यहाँ से हम कंडेंस करते हैं जो हमें मिलती है और उसको हम ले लेते हैं। जो बच जाती हैं अनरिएक्टेड गैसेस, क्योंकि ये तो कैटलिस्ट चैम्बर है, यहाँ पर बेटा आपकी N2 3H2 भी प्रेजेंट होगी, तो वो वापस चली जाती है इस प्रोसेस के थ्रू कंडेंसर से ही आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो कि अनरिएक्टेड रही वो वापस कहाँ मूव कर जाती हैं? कंप्रेसर में, एंड देन अगेन दे रिएक्ट इन द कैटलिस्ट चैम्बर, वो फिर से यहाँ मिक्स होती हैं अंडर द फेवरेबल कंडीशन, इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन होगा, ली-चैटलियर प्रिंसिपल दोबारा एप्लीकेबल होगा और दोबारा से हमें NH3 मिलेगी। सो दिस इज अ फ्लो डायग्राम ऑफ वी कैन से योर हेबर्स प्रोसेस। नाउ जैसा कि हमने बात करी कि हेबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 700 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या करती है? आपकी बनती है, ठीक है। और as we have told you, aluminium oxide, ferric oxide and potassium oxide, these are also added in this reaction to improve its performance, माने faster करने के लिए होता है। और it makes जो कंप्रेसर होता है, और साथ में ये इसलिए भी यूज होते हैं कि रिएक्शन में ज्यादा सरफेस एरिया दे दें सो दैट रिएक्शन विल बी मोर फास्टर। रिएक्शन बेटा ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है तो ये रिवर्सिबल होती है, और दैट्स वाई सारा का सारा रिएक्टेंट हमारा अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होता। जैसा हमने फ्लो चार्ट में देखा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हमें फिर से मिलती है इसमें, जो वापस कंप्रेसर में जाके कन्वर्ट की जाती है अमोनिया में। अमोनिया को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? कंडेंसर में इस गैस को पास करते हैं और फिर उसे लिक्विफाई करते हैं और सेपरेट कर देते हैं। अनकम्बाइंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, it is recycled and again used to prepare ammonia. Next, this is about the structure of ammonia, as we have already told you, it is a trigonal planar। इसके अंदर क्योंकि एक टेट्राहेड्रल होना चाहिए बट एक लोन पेयर होता है, यह हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपका presence of one lone pair, or its angle becomes in between the two hydrogen, that is 107 point, it is 0.8 degree, ठीक है। एंड दिस नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं अब केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमोनिया की, सो विथ एयर इट अमोनिया जो है बर्न्स इन अ लॉट ऑफ एयर, और इसकी फ्लेम जो होती है येलो ग्रीन होती है एंड इट फॉर्म्स नाइट्रोजन गैस। It also react in excess air, and in the presence of platinum catalyst it forms
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे कहते हो। देखो बेटा आप डिफरेंस देखो, जब लॉट ऑफ एयर के साथ सिंपली बर्न कर रहा है तो N2 गैस बना रहा है, जब प्लैटिनम कैटलिस्ट की फॉर्म प्रेजेंस में एक्सेस एयर के साथ कर रहा है तो क्या बनाता है, NO की प्रेजेंट नाइट्रिक ऑक्साइड आपको एयर के साथ रिएक्शन करने पे देता है। अमोनिया जो है कॉपर ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है, और कॉपर ऑक्साइड का आपको मालूम होगा कलर ब्लैक होता है। व्हेन इट रिएक्ट्स विद अमोनिया इट कन्वर्टेड इनटू ब्राउन एज इट इज अमोनिया रिड्यूस्ड कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को, ठीक है, क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में रिड्यूस्ड कर देता है विद द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हेलोजेंस की बात करते हैं, so it react with halogens also, and it reacts with the chlorine and forms ammonium chloride with the release of nitrogen gas। और अगर क्लोरीन जो है इन एक्सेस में लेते हैं आपका, ठीक है, then instead of formation of ammonium chloride it forms nitrogen trichloride, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं बेसिकली अमोनिया क्योंकि हाईली सोल्यूबल इन वाटर है, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा, ये अमोनियम सॉल्ट्स भी बनाता है विद एसिड्स के साथ। और जैसा कि मैंने कहा इन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इट फॉर्म्स, अगर हम एक्सेस में लेते हैं तो इट फॉर्म्स NCl3 विद HCl। अगर मैं बात करती हूँ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की इसकी, तो यस अमोनिया सोल्यूशन, जिसे कि हम अमोनिया सोल्यूशन क्या होगा बेटा, NH3 प्लस वाटर गिव्स NH4OH, यही बनाएगा ना NH4OH, सो दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होंगे, अमोनिया सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयंस है जो कि मेटल आयंस को क्या कर सकते हैं, हाइड्रोक्साइड के थ्रू प्रेसिपिटेट कर देंगे। मेटल आयंस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म्स करता है when ammonia is added to copper sulfate solution, so the reaction which takes place, copper 2 positive हाइड्रोक्सिल के साथ आया तो क्या बनाया, CuOH whole twice बनाया। These Cu2 positive when combines with ammonia, so this is forming a complex ion। ये आपका क्या बना, यहाँ पे एक complex ion बना जिसका कॉपर Cu2 पॉजिटिव का कलर बेटा ब्लू होता है, और इसका जो कलर होता है वो डीप ब्लू होता है, ठीक है, डीप ब्लू। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे। ये है टेट्रा अमीन कॉपर आयन, ठीक है, क्यूप्रस आयन है। सो सिमिलरली आयरन के साथ जो कि आपका आयरन का कलर, आयरन Fe2 पॉजिटिव का कलर जो होता है वो आपका ग्रीन होता है, और जब ये NH3 के साथ आपका रिएक्ट करेगा तो FeNH3 4 2 पॉजिटिव बनाएगा, एंड इन दिस वन केस dirty green precipitate is will be formed। और साथ में क्या बनेंगे, फेरिक आयन का बनेगा which forms a brown precipitate which is insoluble in excess, ठीक है। with active metal it is also reacting, like sodium when react with ammonia then it forms soda amide, NaNH3 plus H2 gas, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट कंपाउंड और केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें कि हम याद रखना ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन और उनके कलर्स को डिफरेंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन में, सो दैट्स व्हाई इट easily donate its lone pair and makes ammonia molecule as a Lewis base, और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, लिंकेज करेगा मेटल आयंस के साथ, और इस तरीके के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाएगा, ठीक है। अगर फर्दर रिएक्शंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे कि आप देख सकते हैं इट रिएक्ट्स विद अमोनिया का, मैंने पहले बता दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं NaCl के साथ तो ये हाइड्राजीन देता है एक्सेस ऑफ अमोनिया में। नेस्लर रिएजेंट जो कि K2HgI4 होता है, पोटेशियम टेट्रा आयोडेट मरकरी, और
ammonia जो है in the presence of KOH, it gives a brown precipitation of Millen's base. This is the Millen's base beta, NH2 HgOHgi 7 Ki plus water. ठीक है, सो ये मिलन्स बेस की फॉर्मेशन करता है विच इज फॉर्मिंग योर ब्राउन प्रेसिपिटेट, एंड दिस इज द जीरो ग्रुप. जब आप कैटायंस के टेस्ट करोगे तो ये जीरो ग्रुप की रिएक्शन भी होगी वहां पर. ठीक है, जीरो ग्रुप में अमोनिया की प्रेजेंस होती है, और अमोनियम आयन को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नेस्लर रिएजेंट का एडिशन करते हैं. ठीक है, ये आपने किया, अब आप करेंगे 11th में, तो इस बार आप लोग नहीं कर पाए हैं, तो वी विल डू this reaction, study this reaction in our practical also. Okay, now we are talking about the last topic, that is uses of ammonia. So as we have seen, it is used in the manufacture of fertilizers जैसे कि ammonium sulfate. It is also used in softening water. It is used in preparation of nitric acid, and it is also used in making of plastics. So this is all about for today video, and you have to go through again back, prepare, study about the preparation and properties of dinitrogen and preparation and properties of ammonia. Thank you.